Hello class 10 students, welcome all of you in this online session. Today I am going to solve exercise 4.2. So first question you have here, that is find the roots of the following quadratic equations by a factorization. So here you have to find the roots. Roots means what? You have to find the value of x here by the method of what? Factorization. In class 8 or 9 you have already studied about how to factorize the quadratic equation, okay, when you have given three terms. So here you have to split the midterm splitting. You have to find the factorization by the using of method what? Midterm splitting method. So according to midterm splitting method, first of all you have to multiply the last term and the first term. Here that is 10 into x square, that is 10x square, and you have to find the two factors of these, okay, that is 5 and 2, and when you subtract 5 and 2 you will get what? 3x. So that is 5x and 2x. Let's multiply it. 5 to 10 and x into x square. So here what? X square minus 5x and plus 2x minus 10 is equal to 0. So now first take a common from first two terms and the last two terms. X is equal to x minus 5 and plus 2 x minus 5 is equal to 0. Okay, so now take a common x minus 5 and you have here x plus 2. So you have two cases are available here. First one, that is when x minus 5 is equal to 0, from this you will get x equal to 5, and when x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2. So the roots are x is equal to 5 and minus 2 is the required answer. So this is how you can you have to find the roots of a given quadratic equation. So बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ये मिड टर्म स्प्लिटिंग है जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है मिड टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू. तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है. उसके बाद जो ये मिड टर्म होता है तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ये इसका दो फैक्टर जो होता है 5 to 10, इसके मल्टीप्लाई करके ये भी मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, प्रोडक्ट भी आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके आपका ये वाला 3 आना चाहिए. तो 5 और 2 को माइनस करके ही करना पड़ेगा. तो एक माइनस वाला होगा, एक प्लस वाला होगा, तो माइनस प्लस माइनस और साइन माइनस करेगा. इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Here you have 2x square plus 7x plus 5 root 10 root 2 is equal to 0. So here you have to again multiply the first term and the last term, that is a root 2 into root 2 2 and 5 to the 10. So 10, the two factors of 10 is that is 5 and 2, and add this 5 plus 2 what? 7. So root 2x square, and this 7x will be split into 5x plus 2x gives you 7x, and plus 5 root 2 is equal to 0. So here first you have to take a common from the here last two terms. So here you have to take a common root 2. So here you have left, that is root 2x, because root 2 into root 2 you will get 2, and plus here root 2 into 5 you will get 5 root 2. तो ये हो गया. एंड यही वाला आपका क्या होता है नेक्स्ट टर्म में भी आता है आपका. सो रूट 2x प्लस 5 आप इजीली यहाँ पे रख दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा. देखो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर रूट 2x एंड 5x. सो नाउ टेक ए कॉमन रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर you will get x is equal to minus 5 by root 2, minus 5 by root 2 and minus root 2. So these are the required roots of the given quadratic equation. Again in question number 4, here you have to do that 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. So let's eliminate these 8. So for to eliminate these 8 you have to multiply both the LHS and RHS with 8. So 8 to just 16x square माइनस 8x एंड प्लस 1 एंड 8 0 0 और यहाँ पे 8 इंटू हुआ ये कट गया था, ठीक है.
So now from here 16 1 16, so 16x square minus 4x minus 4x plus 1 equal to 0. 4 4 16 and 4 plus 4 minus 8. Now 4x square, so here 4x minus 1 and minus 1 and 4x minus 1 equal to 0. So from here you will get 4x minus 1 and 4x minus 1 equal to 0. So now x is equal to 1 by 4 and 1 by 4. Okay, so this is how you can find the roots of any roots, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी रूट्स, ठीक है. सो आई थिंक ये आपका इजीली हो जाएगा. 100 1 जा 100, तो यहाँ पे आपका 2 फैक्टर होगा इसका, 10 माइनस 10x माइनस 10x. आपको इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट यू हैव जो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. हियर यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. सो इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 1 में जो सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम गिवन है उसको सॉल्व करना है, जो आपका इधर है एग्जाम्पल 1, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज. सो फर्स्ट थिंग हियर in question you have given, that is John and Jevanti together have a 45 marbles. मतलब इन दोनों के साथ मिला के कितना है आपको 45 marbles है. So both of them lost 5 marbles each. अब दोनों के पास से 5-5 मार्बल क्या हो गया, lost मतलब खो दिया वो लोग. And the product of the number of marbles they now have is 124. मतलब दोनों के पास मिला के टुगेदर, दोनों के साथ, दोनों के पास, अगर दोनों के पास जितना, मतलब सपोज़ करो कि जॉन के पास कुछ मार्बल्स है, जेवंती के पास कुछ मार्बल्स है, दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 45 आ जाएगा. कितना आएगा बच्चों, 45 आपके पास आ जाएगा. बाद में क्या हुआ कि दोनों जो है 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो गया दोनों के पास से, तो क्या हो गया फिर, अब जो दोनों के पास जो बचेगा उसका प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 124 है. तो फर्स्ट थिंग हियर यू हैव टू डू दैट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू लेट, है ना. तो दोनों के पास मिला के है, सपोज़ करो कि एक के पास मान लो कि आपका 20 है, एक के पास आपका 25 है. अगर एक के पास 20 है, एक के पास 25 है, अगर एक के पास 20 है, एक के पास 25 है, तो दोनों के पास मिला के 45 हो रहा है. सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. तो अगर इसको मैं रख रहा हूँ x फर्स्ट, दैट इज़ जॉन के पास x है, तो 25 जो आएगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 45 में 20 माइनस करना पड़ेगा, तब ना ये आपको 25 देगा. दैट मीन्स अगर जॉन के पास x होगा, अगर लेट कर रहा हूँ मैं, जॉन हैव ए x मार्बल्स, देन द जेवंती हैव ए 45 माइनस x मार्बल. ओके, सो हियर फर्स्ट थिंग यू हैव टू लेट, दैट इज लेट द number of marble John had be x and number of marbles Jevanti be 45 माइनस x. ये हो गया. तो आप किसी को भी, जेवंती को भी x ले सकते हो आप लोग, और फिर आपका जॉन को भी 45 माइनस x ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ both of them lost 5 marbles. दोनों जो है 5-5 मार्बल खो दिए. सो मार्बल लेफ्ट विथ जॉन के पास कितना बचा, जॉन के पास x था तो 5 खो दिया तो x माइनस 5 बचा. मार्बल्स लेफ्ट विथ जेवंती 45 माइनस x माइनस 5, डेट इज़ 40 माइनस x. सो अब इन दोनों को जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 0 कर देना है. 40 इंटू x 40x, 5 4 जा 200
एंड 540 जा माइनस माइनस प्लस और 5x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब इक्वल टू 124 सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा आपका 124, ठीक है, प्रोडक्ट आपका 124 आ रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो 40 प्लस 5x दैट इज़ 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। So from here minus x square plus 45x and minus 324 equal to 0। जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे आप, x स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0। अब जो इसका दो फैक्टर होगा वो फैक्टर चूज़ करना है आपको, उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर यहाँ पे है आपको, तो इसको क्या करना है, ऐड होके आना है ये वाला, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 एंड 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 नहीं होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 और 3। सो दो फैक्टर आ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x माइनस 36 माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0। सो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केस आपका बन रहा है, x इक्वल टू 36 और 9 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास 9 होगा, अगर जॉन के पास 9 होगा तो जयवंती के पास 36, दोनों केसेस आपका हो सकता है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।